Hello friends, I welcome you all to Skylark Skills Academy. In this third video of our declutter series, we are going to declutter the recent happenings that took place between the China and the Sri Lanka and what will be its consequence on India. So let's proceed. As you can see in the screen, there is Sri Lankan Parliament approves Chinese port bill with amendments. In the next slide, you can see that there is the Sri Lankan opposition party minister. He is saying that the country will become a servile to foreigners. Servile means slave. So he is actually trying to say that if the Colombo port bill is going to take its real form, then the Sri Lankans will be the slave of Chinese. So let's try to declutter this. So first of all, let us know what is the crux of the news. The crux of the news is that Sri Lankan Parliament has recently passed a bill regarding the development of Colombo Port City by Chinese investors as a special economic zone. So friends, हम पहले जानते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होती है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्चुअली एक छोटी छोटी जोन्स होती है जो कि गवर्नमेंट एरियाज को बांटती है, जहां पर जो रूल्स होते हैं वो टोटली डिफरेंट होती है फ्रॉम द मेनलैंड कंट्री. वहां क्या होती है कि वहां पर जो लेबर लॉज होते हैं, जैसे कि और भी जो इन्वेस्टमेंट जो फंड्स होते हैं और भी जो बहुत सारे रूल्स होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं. दैट इज फेवरेबल टू द ट्रेड एंड कॉमर्स. ठीक है. तो फ्रेंड्स, व्हाई इट इज गोइंग टू बी अ कंसर्न फॉर इंडिया? तो इसके जानने के लिए हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम्बनटोटा का. फ्रेंड्स, हमें पता है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि चाइना ने श्रीलंका को एक लार्ज अमाउंट में डेट दिया था. ठीक है. और क्योंकि श्रीलंका उस डेट को चुका नहीं पाए, तो आफ्टर ऑल एट द एंड क्या हुआ कि चाइना ने श्रीलंका से हम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर्स के लीज में ले लिया. ठीक है. एट द सेम टाइम अगर आप देखें, इंडिया और जापान ने भी श्रीलंका के साथ में एक एमओयू साइन किया था. उसमें यह था कि इंडिया और जापान मिलकर कोलंबो पोर्ट का जो ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल है वो डेवलप करेंगे. लेकिन जैसे ही वहां की गवर्नमेंट चेंज हुई और राजपक्षा ब्रदर्स आए एज द न्यू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने यह पोर्ट बिल को कैंसिल कर दिया. ये हम जानेंगे आगे के स्लाइड्स में आखिर क्यों. ठीक है. सो फर्स्ट लेट अस नो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कोलंबो पोर्ट सिटी फॉर इंडिया. So the most important significance is that since the Colombo port city will be developed by Chinese, there will be huge Chinese influx in the Sri Lankan mainland, and with that there will be huge infrastructure projects that will be carried out by Chinese investors like ports, airports, etc. So there is a possibility that in future China may use these ports and airports against India during war. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. ठीक है. अगर हम चाइना के अगर प्रीवियस स्ट्रेटजीज को देखें और उससे चीजों को समझने का ट्राई करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जो है वो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी ऑफ चाइना. सो हम समझते हैं व्हाट इज दिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी ऑफ चाइना. ठीक है दोस्तों, आप इस मैप में नीचे वाली मैप को यदि देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं एक डॉटेड लाइन दी हुई जो कि भारत को चारों ओर से इनसर्कल करती है. ठीक है. एक्चुअली दिस इज द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स system. ठीक है. और अब let me explain it first to you. So in this string of pearls system, what happens that China used to build a number of ports on its own expense for various other countries under several MOUs, and then use these ports for its commercial purposes and for its military purposes. For example, if we talk about the Myanmar, so China has built a port with the name Kyaukphyu port, which is in Myanmar. In the same way, if we talk about the Bangladesh, again there is the Chittagong port which has been developed by China for the same purpose. We already know that Hambantota has been in lease to the Chinese for 99 years because because Sri Lankans were unable to pay the debt to Chinese. If we talk about the Maldives, then China last year has bought an island with Maldives with just $4 million rupees. So it's a great, it's a great failure for India, क्योंकि इंडिया के सामने से चाइना ने मालदीव्स के एक आइलैंड को, जो कि क्योंकि मालदीव्स इंडिया के एकदम सदर्न पिन पॉइंट में है, तो अगर यहाँ पर चाइना ने एक आइलैंड खरीद लिया और अगर मान लो कल को वहां पर वो मिलिट्री बेस बना ले, तो इंडिया के लिए बहुत ही घातक हो सकती है. तो यहाँ पर जो इतने छोटे से अमाउंट में $4 मिलियन के कारण जो मालदीव्स को चाइना को अपना एक आइलैंड देना पड़ा, इंडिया को वहां पर रेस्क्यू करना चाहिए था. मालदीव्स को $4 मिलियन दे देना था और चाइनीज को वो पोर्ट छुड़वा लेना था. बट इंडिया का वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर है. ठीक है. If we move further in the string of pearls, we can see that there is a Djibouti base. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको दिख रहा होगा जिबूती. ठीक है. तो जिबूती जो है वहां पर चाइना का फर्स्ट क्या है, ओवरसीज नवल बेस है. ठीक है. इसके अलावा यदि आप देखें तो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है जो कि चाइना रिसेंटली डेवलप कर रहा है. ठीक है. अगर आप बात करें चाइना और पाकिस्तान के बारे में, तो चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपेक भी कहते हैं, वो बनाया जा रहा है. ठीक है. अगर सीपेक का एक्चुअल वैल्यूएशन देखा जाए तो दिस इज गोइंग टू बी $42 बिलियन. और हमें ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तान एक बहुत ही छोटी इकोनॉमी है, इनका ना ही जीडीपी इतना बड़ा नहीं है. तो ये क्या कर सकते हैं, इट इज डैम श्योर दैट दे आर नॉट गोइंग टू पे द
चाइनीज द अमाउंट ऑफ मनी दैट चाइनीज आर इन्वेस्टिंग इन दिस प्रोजेक्ट्स। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली उनका भी हाल होने वाला है श्रीलंका की तरह। जैसे श्रीलंका ने हम्बनटोटा चाइना को दिया, इन द सेम वे पाकिस्तान भी अपना बहुत सारा प्रोविंस फ्यूचर में चाइना को लूज करने वाला है एज अ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, अगर हम बात करें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, तो ये आप देखिए एक तरह से पूरा तरह से क्या बन गया, इन सर्कल बन गया, फ्रॉम क्याक्यू इन म्यांमार टू चिटागोंग इन बांग्लादेश टू हम्बनटोटा इन श्रीलंका टू मालदीव्स एंड देन फ्रॉम जिबूती टू ग्वादर एंड देन थ्रू सीमेक इट्स इनसर्कल्स द इंडिया। और इस जो इनसर्कलिंग है इसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पियर्स, या फिर हिंदी में कहे तो मोतियों की माला जो स्ट्रेटजी है चाइना की, ये उसे दिखलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या है कि हम जानेंगे कि व्हाट इज चाइनीज एक्सप्लेनेशन बिहाइंड एक्विजिशन ऑफ पोर्ट्स। ठीक है, तो अब क्या है कि सिंस चाइना बहुत सारे पोर्ट्स लीज में ले रहा है, बहुत सारा मिलिट्री बेस बना रहा है, तो पूरे वर्ल्ड से खपा है। ठीक है, एक वर्ल्ड में एक ऑल ओवर वर्ल्ड कंसर्न है कि आखिर चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर कोई और देश करे फ्रेंड्स तो एक तरह से चलता है, क्योंकि और बाकी देशों का अगर आप डिप्लोमेसी देखें तो वो इतना ही स्ट्रिक्ट डिप्लोमेसी नहीं है, इतना एग्रेसिव डिप्लोमेसी, लेकिन अगर फॉरेन पॉलिसी देखें तो दैट इज सो एग्रेसिव। एक्चुअली चाइना अभी के टाइम में क्या चाहता है, चाइना अभी के टाइम में इस पूरे इंडियन ओशन में हेजमनी चाहता है, जैसे कि कोल्ड वॉर के टाइम में यूएस का था ऑल ओवर द ग्लोब। तो इसलिए बहुत सारे देश कंसर्न्ड है। ठीक है, तो उन सबको प्लीज करने के लिए चाइना एक कुछ एक्सप्लेनेशन देता है। ठीक है, और उसमें चाइनीज के अगर एक्सप्लेनेशन देखे तो पहला जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि वी आर डूइंग दिस फॉर द कमर्शियल पर्पस। वो बोलते हैं कि वी हैव नो प्लान्स टू बिल्ड मिलिट्री पोर्ट्स और डॉक आवर सबमरीन्स देयर, वी आर जस्ट डूइंग इट और ट्रेड पर्पस। वो कह रहे हैं कि हमें बस ट्रेड करना है, ये ट्रेड में सुविधा होगा क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशंस में है। सो वी आर गोइंग टू बिल्ड दिस पोर्ट्स और वी आर गोइंग टू टेक दिस पोर्ट्स इन लीज। ठीक है, दूसरा क्या करना है, यदि हम बात करें जिबूती बेस का अगर बात करें, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप इस वीडियो में इस फोटो में देखें तो सबसे नीचे में यमन के नीचे में जो जा रहा है वहां पर जिबूती है। तो यदि जिबूती का बात करें तो क्योंकि वो कोई स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स में है नहीं, है भी तो मेन पर्पस अगर वहां पर पूछा जाए तो चाइना बताता है जिबूती बेस के बारे में कि ये है टू फाइट द विद पैरेट्स। पैरेट्स क्या होते हैं, पैरेट्स होते हैं समुद्री लुटेरे। ये क्या करते हैं, जो भी मर्चेंट शिप्स, जो कि मान लीजिए अगर कोई मर्चेंट शिप है जो कि यूरोप से केप टाउन से होते हुए यदि स्ट्रेट ऑफ मडागास्कर चैनल से, अगर मोजाम्बिक चैनल से होते हुए मूव करती है, या फिर बहुत कुछ मर्चेंट शिप्स होते हैं जो कि स्वेज कैनाल से होते हुए आती है, या फिर मान लीजिए आप अरेबियन पेनिनसुला से भी आती है, तो क्या करते हैं यहाँ पर जो कुछ अफ्रीकन पैरेट्स होते हैं, समुद्री लुटेरे थे, वो क्या करते हैं इन शिप्स को अपने अधीन में ले लेते हैं और फिर रैंसम मांगते हैं उसके बदले में। तो चाइना बोलता है कि वी हैव बिल्ट दैट मिलिट्री बेस इन द जिबूती टू जस्ट काउंटर दोस पायरेट्स। ठीक है, बट ये तो चाइनीज की एक्सप्लेनेशन थी। लेकिन अगर हम देखें कि व्हाट आर द रियल रीजंस बिहाइंड देम, एक्चुअली दीज आर नॉट द रियल रीजंस, बट द रियल रीजंस बिहाइंड देम वाज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑयल सप्लाई रूट्स। फ्रेंड्स, यदि हम इस मैप में देख सके, नीचे वाले मैप में, तो क्या है, या ऊपर वाले मैप में भी आप देख सकते हैं, एक्चुअली क्या है कि चाइना जो है वो पूरी तरह से आज के टाइम में स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे डिपेंडेंट है फॉर इट्स सिक्योरिटी ऑफ फ्यूल। ठीक है, तो चाइना के जो फ्यूल है, ठीक है, जो एनर्जी है वो कहां से आती है, वो आती है तो आपके ऑयल से। ऑयल कहां से आती है, हमारे अफ्रीकन कंट्री से आती है और अरेबियन कंट्री से आती है। तो अगर आप रूट देखें तो जो ब्लू लाइन बता रही है रूट बता रही है। ठीक है, तो चाइना अभी यूज करता है, वो क्या करता है, from Arabia it comes way back to Hambantota and then from Hambantota it passes through Strait of Malacca and then to China। तो Strait of Malacca एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं Strait of Malacca क्या है, एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट मींस क्या होता है, स्ट्रेट मींस एक नैरो पैसेज। ठीक है, दो लैंड के बीच में एक छोटा पतला सा जो पैसेज होता है, जहां जो वाटर बॉडी होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। ठीक है, अब देखिए चाइना को क्या डर है, चाइना को ये डर है कि अगर फ्यूचर में मान लीजिए चाइना का इंडिया के साथ वॉर होता है तो क्या करेगा इंडिया ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर सकता है। क्यों, क्योंकि इंडिया के पास में यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक ट्राई सर्विस कमांड है। ठीक है, ट्राई सर्विस कमांड मींस आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का वहां पर बेस है। ठीक है, तो चाइना आराम से अपना सबमरीन यहाँ लगा सकता है, या फिर अपना आईएनएस विक्रांत या फिर बहुत सारे इसके जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर है वो यहाँ पर लगा के इसे चोक कर सकता है। और एक बार यदि चोक हो जाए ये पॉइंट, क्योंकि ये बहुत ही नैरो है, अगर एक बार इंडिया चोक कर देता है तो क्या हो सकता है कि चाइना का जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, चाइना का जो फ्यूल है वो चाइना तक पहुंच नहीं पाता है, और क्योंकि किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ने के लिए या फिर किसी भी बैटल टैंक को मूव करने के लिए पेट्रोल या डीजल चाहिए होता है। ठीक है, अब चाइना के पास डीजल होगा नहीं तो वो वॉर कहां से लड़ेगा, चाइना वॉर नहीं अफोर्ड कर पाएगा। ठीक है, उसकी जो इकोनॉमी बहुत तरह से पूरी तरह से चरमरा जाएगी। इसलिए उससे ये डर है कि ये इस एक इकलौता पॉइंट में डिपेंडेंट ना रहे, इसलिए वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि वो अपने एनर्जी सिक्योरिटी को डाइवर्सिफाई करे। अब वो डाइवर्सिफाई कैसे करेगा, तो देखिए अगर आप इस मैप में देखेंगे, नीचे वाले मैप में या ऊपर वाले मैप में भी आप देख सकते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ जो चाइना है वो क्या कर रहा है कि पहले यहाँ से अरेबियन पेनिनसुला से इसके जो जितने भी शिप्स आएंगे वो मूव करेंगे और थ्रू ग्वादर पोर्ट सीपेक होते हुए वो वेस्टर्न चाइनीज प्रोविंस में पहुंच सकते हैं।
ठीक है। दूसरा रास्ता ये क्या यूज करता है, दूसरा रास्ता ये यूज कर सकता है थ्रू हमन टोटा, ये मूव कर सकते हैं कहां पर, वहां पर क्योक्यू पोर्ट में। और क्योक्यू पोर्ट जो कि म्यांमार में है, वहां से क्या होता है, वहां से चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप किया हुआ है, जो कि चाइना के यूनान प्रोविंस, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ चाइना है, वहां से लेकर कनेक्ट करता है म्यांमार को ऑल द वे टू क्योक्यू। तो क्या करेगा, जो शिप होगा वो क्योक्यू पोर्ट में रुकेगा, फिर वहां पर थ्रू वेदर इट बी पाइपलाइन और थ्रू ट्रेन या फिर थ्रू बसेस, जो भी हो, फ्यूचर में वहां से वो यूनान प्रोविंस तक चाइना को तेल सप्लाई पहुंचा सकता है। तो इससे क्या होगा, तो चाइना जो है टोटली एक रूट पे डिपेंडेंट नहीं होगा और ये लंबे टाइम तक वॉर लड़ सकता है या फिर अपने इकोनॉमी को सस्टेन कर सकता है, इवन डूइंग एडवर्स कंडीशन विद एडवर्स फाइट विद इंडिया। सेकेंड क्या आता है, सेकेंड जो बेनिफिट है, ठीक है, बेसिस का, वो है चाइना कैन प्ले अ मिलिट्री फ्रंट मिलिट्री अटैक, मल्टीपल फ्रंट मिलिट्री अटैक इन केस ऑफ वॉर विद इंडिया। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर इंडिया के साथ में कल को वॉर होता है तो चाइना एक साइड से नहीं, सिर्फ नॉर्दर्न साइड से नहीं, जैसे गलवान वैली के टाइम हुआ, चाइना क्या था, चाइना मजबूत था, वो सिर्फ एक साइड से गलवान वैली से फाइट करने चाह रहा था, लेकिन वहां पर जो कंडीशन थे गलवान वैली में, वो तिब्बतन साइड वो ज्यादा एक्सट्रीम थे, इसलिए चाइना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो फ्यूचर में चाइना का प्लान है कि जब भी फाइट हो तो वो क्या करे, चारों तरफ से इंडिया को घेरे और चारों तरफ से वो इंडिया पर अटैक करे। अब वो कैसे करेगा, मान लीजिए कि इंडिया के वहां पर चाइना का जो पोर्ट्स है वो कहां कहां है, म्यांमार में है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, मालदीव में रहेगा, जिबूती में रहेगा, ग्वादर में रहेगा। तो ये इन सारे पोर्ट्स में पहले से क्या करेगा, अपने सबमरीन्स को, अपने फ्रेट्स को, अपने डिस्ट्रॉयर्स को डिप्लॉय करेगा और एक ही बार में काफी घातक तरीके से इंडिया में अटैक करेगा, इसमें इंडिया को संभलने का मौका ना मिले। ये मेन वन ऑफ द मेन रीजंस है। और जो थर्ड एंड फोरमोस्ट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है फॉर स्पाइंग पर्पस। चाइना क्या करता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये इन सारे जो पोर्ट्स है वो चाइना के अंडर आता है, तो चाइना को किसी भी कंट्री से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है अपने शिप्स को वहां पर डॉक करने में। तो चाइना क्या करता है, बहुत बार अपने शिप्स के साथ में सबमरीन्स भी डॉक कर देता है और इंडिया पर स्पाई करता है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली अगर आपको याद होगा तो कुछ महीने पहले इंडिया ने कंप्लेंट किया था श्रीलंका से कि आपके जो हम्बनटोटा पोर्ट है, जिससे चाइना ने कहा था कि वी आर जस्ट गोइंग टू यूज इट फॉर कमर्शियल पर्पस, वहां पर उसने स्पाइंग सबमरीन डॉक कर रखा था लंबे टाइम तक, जिससे वो इंडिया पर स्पाई कर सके। ठीक है, तो चाइना ऐसा काम करते रहता है। तो ये एक तीन मेन रीजन है, रियल रीजन है, जिसके कारण वो चाइना इन सारे पोर्ट्स को लेना चाहता है। ठीक है ना, व्हाट इज इंडिया प्लान टू काउंटर चाइना। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगा। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया जो उसके जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी था, उसके काउंटर में नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी लाया। ठीक है, अगर आप नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी में देखें, ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया इंडिया ने, जहां पर चाइना ने म्यांमार में, अगर आप मैप में देखोगे तो चाइना ने जहां म्यांमार में क्योक्यू पोर्ट बनाया, इंडिया ने क्या किया, वहीं पर उसके सामने में कौन सा पोर्ट बनाया है, सीतवे पोर्ट। ठीक है, सीतवे पोर्ट जो है वो म्यांमार में पड़ता है और वो कौन सा, अराकान यूमा वाले एरिया में पड़ता है, सदर्न साइड ऑफ द अराकान यूमा। ठीक है, तो देखिए सीक्वे पोर्ट जो है वो इंडिया ने क्यों बनाया, तो उसका इंडिया का पर्पस, दो पर्पस है। पहला पर्पस क्या है, पहला पर्पस ये है कि ड्यूरिंग वॉर, अगर चाइना के साथ में कल को कभी भी वॉर होता है तो चाइना क्या कर सकता है, चाइना जो चिकन नेक है इंडिया का, जो कि वो सिक्किम वाला पार्ट है, जो बहुत ही पतला पार्ट है, उसको ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, अगर चाइना उस पार्ट को अगर ब्लॉक कर देता है, आप सोचिए जरा, क्योंकि उसके ईस्टर्न साइड में नेपाल है, वेस्टर्न साइड में भूटान है, तो वो जो चिकन नेक वाला है वो बहुत ही क्या है, बहुत ही वल्नरेबल एरिया है। तो अगर चाइना उस एरिया को ब्लॉक कर देता है तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और इन केस नॉर्थ ईस्ट इंडिया कट ऑफ हो जाएगा तो वहां पर अपना शासन करना बहुत ईजी हो जाएगा चाइना के लिए। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने बोला कि ठीक है, वी आर गोइंग टू मेक अ कनेक्टिविटी पोर्ट ऑल द वे थ्रू बे ऑफ बंगाल टू म्यांमार, एंड थ्रू म्यांमार वी आर गोइंग टू रीच नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, कि हम पहले बे ऑफ बंगाल से सीतवे पोर्ट जाएंगे और फिर सीतवे पोर्ट में सीतवे नदी के थ्रू होते हैं त्रिपुरा और फिर आगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कनेक्टिविटी बना पाएंगे, चाहे किसी भी कंडीशन में। तो ये इंडिया का एक पॉइंट है उस चाइना के स्ट्रेटजी को तोड़ने का। सेकेंड क्या है, सेकेंड इंडिया का क्या, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इंडिया के पास इंडिया ने अपना ट्राइलेटरल सर्विस जो कमांड है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में क्या कर रखा, बना रखा है। ठीक है, ट्राइल सर्विस कमांड मींस आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का उसके पास क्या है, वहां पर बेस है। ठीक है, अब देखिए बेनिफिट क्या होता है इससे, अगर इंडिया ने यहाँ पर ट्राइलेटरल सर्विस कमांड बना रखा है तो इससे क्या सकता है, वो चाइना को ड्यूरिंग वॉर क्या कर सकता है, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है उसको ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, और इंडिया अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर देगा तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगी, उसकी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाएगी। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड इंडिया ने जो ओमान में एक इंडिया का एक मिलिट्री बेस है जिसका नाम है दुक्कम पोर्ट इन राम, तो ओमान, तो ओमान में वहां क्या है, ऑलरेडी इंडिया का एक नवल बेस है, जैसे कि चाइना का जिबूती में अपना मिलिट्री बेस है, सेम टू सेम इंडिया का दुक्कम में अपना मिलिट्री बेस है। ठीक है, इन द सेम में यदि हम ईरान में देखें आगे ऊपर जाके, तो ईरान में चाबहार पोर्ट है। ठीक है, सदर्न ईरान में आप देखोगे पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड में तो चाबहार पोर्ट है, वो भी क्यों है, वो है ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए। इन केस फ्यूचर में चाइना चाहे कि हम ग्वादर पोर्ट के थ्रू इंडिया का जो एनर्जी सप्लाई लाइन है उसको हम डिस्कनेक्ट कर दें, तो उससे आगे इंडिया के पास है चांसेस, क्यों, क्योंकि चाबहार पोर्ट उसके वेस्टर्न साइड में, तो इंडिया पहले ही ब्लॉक कर सकता है। तो इंडिया ने भी ऑलरेडी बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी बना रखा है।
और थर्ड यदि आप देखें तो यहाँ पर जो सेंट्रल एशिया है वहां पर इंडिया के पास क्या है, वहां पे जो मंगोलिया साइड आप ऊपर वाले मैप में देखिए मंगोलिया में दिखाया है, वो एक्चुअली में तजाकिस्तान है, ठीक है। वहां तजाकिस्तान में इंडिया का एक एयर स्ट्रिप है जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया ने भी चाइना को चारों तरफ से घेर कर रखा है, एक बाहरी सर्कल बनाया है, इसी जिसे कहते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी। इसमें क्या है कि अगर चाइना कल को हमें घेरना चाहेगा तो हम भी चाइना को बहुत इजी तरीके से चारों तरफ से इन सर्कल कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसके अलावा भी हमने कुछ रखा है प्लान, तो हाँ इसके अलावा भी हमने बहुत कुछ कर रखा है। हमने क्या कर रखा है, हमें बहुत ही सारे कंट्रीज के साथ में एमओयू साइन कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यूएस का बात करें जो कि आज के टाइम हमारा सबसे ज्यादा बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो यूएस के साथ में हमारा हमने कोमकासा, लेमोआ और बेका, ऑल द 3 एग्रीमेंट्स हमने साइन कर रखा है, ठीक है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में क्योंकि बताएंगे, क्योंकि ये काफी बड़ा हो जाएगा। फिर मैं आज सिर्फ आपको लेमोआ में कंसंट्रेट करूंगा, थोड़ा आज तक मैं कुछ आपको बेका के बारे में बताऊंगा, ठीक है, आगे वीडियो में। सेकेंड क्या है, इसके अलावा इंडिया ने लॉजिस्टिक पैक्ट किसके साथ साइन किए, फ्रांस के साथ में साइन की है, ठीक है। फ्रांस के साथ में लॉजिस्टिक पैक्ट साइन करने से बेनिफिट क्या है कि जो आप रीयूनियन आइलैंड है ना, ये देखिए आप यहाँ रीयूनियन आइलैंड देख सकते हैं, ये कि फ्रांस का एक मिलिट्री बेस है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर लॉजिस्टिक पैक्ट इंडिया और फ्रांस के साथ है तो इसका मतलब ये लॉजिस्टिक पैक्ट मतलब ये हुआ कि आप एक दूसरे का जो नवल बेसिस है या फिर जो पोर्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी टाइम में बिना एक दूसरे से परमिशन लिए हुए। तो इंडिया का क्या कर सकता है, ड्यूरिंग वॉर फ्रांस का जो ये रीयूनियन आइलैंड है या फिर पोर्ट है उसे यूज कर सकता है। इन द सेम वे मैंने आपको बताया यूएसए के साथ में भी था, और यूएसए का अगर आप गौर कीजिएगा तो यूएसए के पास में यहाँ पर इंडिया के पास में क्या है, एक डियागो गार्सिया आइलैंड है, ठीक है, जो कि आपका सेम वे इंडियन ओशन में पड़ता है। वहां पर किसका है, वहां पर यूएसए का बेस है, तो इंडिया उस बेस का भी यूज कर सकता है चाइनीज को अटैक करने के लिए। इसके अलावा यदि हम मॉरिशस के ऊपर देखें तो आगलेगा आइलैंड है, यहाँ पर भी इंडिया का एक मिलिट्री बेस है, ठीक है। तो इंडिया भी पूरी तरह से तैयार है चाइना को घेरने के लिए। इसके अलावा दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉजिस्टिक पैक्ट्स है वो और है किसके साथ है, एक इंडोनेशिया के साथ में, एक सिंगापुर के पास में। यदि हम इंडोनेशिया के बारे में बात करें तो इंडियन एशिया का अगर आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का के एकदम माउथ में है सबांग पोर्ट, जो कि इंडोनेशिया का पोर्ट है, ठीक है। तो क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर इंडिया का लॉजिस्टिक पैक्ट है इंडोनेशिया के साथ में तो इंडिया सबांग पोर्ट का यूज कर सकता है अगेन गल्फ ऑफ मलक्का को चोक करने के लिए। इन द सेम वे अगर एट द बैक ऑफ द स्ट्रेट ऑफ मलक्का देखें तो एट द एक्सट्रीम एंड यहाँ पर आपको पता है सिंगापुर है, सिंगापुर में जो चांगी पोर्ट है वो भी इंडिया उसका भी यूज कर सकता है, क्योंकि इंडिया का सिंगापुर के साथ में लॉजिस्टिक पैक्ट है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चाइना का दूसरे देशों के साथ में ऐसी लॉजिस्टिक पैक्ट्स बहुत कम है जितना इंडिया का ऑलमोस्ट देश के वर्ल्ड के बहुत ही सारे कंट्रीज के साथ में है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, आपका सिंगापुर एक्सेट्रा। तो ऑलरेडी इंडिया के बहुत सारे कंट्रीज के साथ में क्या है, लॉजिस्टिक पैक्ट्स है। अब क्या है कि वाई इंडिया इज सो कंसर्न्ड ऑफ चाइनीज नेवी। बात ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट चाइनीज आर्मी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट चाइनीज एयरफोर्स, बट वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट चाइनीज नेवी। आखिर क्यों, तो ये इसलिए है क्योंकि if we talk about the strength of Chinese Navy, the Chinese Navy is not just the world's largest navy, but it is also the world's strongest navy according to various reports. अगर आप बहुत सारे रिपोर्ट्स का, अगर लेटेस्ट जर्नल्स का देखें, बहुत सारे रिपोर्ट्स का देखें, हवाला दें, तो उसमें ये पाएंगे कि चाइना का नेवी वो कहा जाता है कि यूएस की नेवी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर आप नंबर्स देखें तो ऑलरेडी बहुत ही अमेजिंग नंबर्स यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। चाइना के पास अबाउट 70 सबमरीन्स है, ठीक है, उसमें 70 में से 12 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स है और 50 डीजल अटैक सबमरीन्स है। यार 12 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स इज अ ह्यूज नंबर। और ये जो सबमरीन्स होते हैं ना, न्यूक्लियर अटैक और डीजल अटैक सबमरीन्स के बारे में अगर आपको डिफरेंस बताएं तो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स है वो महीनों महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है बिना ऊपर आए, ठीक है। और जो डीजल अटैक सबमरीन्स है वो क्या हो सकती है, वो थोड़े टाइम के बाद उसको नीचे पानी के अंदर जाना पड़ता है। यदि हम बात करें इंडिया के बाद में, तो इंडिया के पास में 20 सबमरीन्स है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियाज अदर काउंटर स्ट्रेटजी। इसके अलावा क्योंकि हमने देखा कि इंडिया के पास मात्र 20 सबमरीन्स है इन रिस्पॉन्स टू चाइनीज 70 सबमरीन्स, तो ये 20 सबमरीन्स आप कितना भी स्ट्रेटेजिक पोजीशन में अपना पोर्ट क्यों ना बना ले, कभी भी ये 20 सबमरीन्स जो होंगे वो चाइना के 70 सबमरीन्स को कभी टक्कर नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा भी देखें तो चाइना का अगर आप मैच करें फ्रेट्स और डिस्ट्रॉयर्स भी, तो इंडिया से कई गुना ज्यादा है चाइना के पास फ्रेट्स और डिस्ट्रॉयर्स भी। तो क्योंकि तो इसका मतलब ये प्रूफ हुआ कि इंडिया सिर्फ स्ट्रेटेजिक लोकेशन से उनको काउंटर नहीं करता है। तो इसके लिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कुछ और भी अदर काउंटर स्ट्रेटजीज अपनाए हैं। अगर उन स्ट्रेटजीज को देखो तो सबसे पहला स्ट्रेटजी है वो ये है कि इंडिया ने रिसेंटली यूएस से पोसाइडन एयरक्राफ्ट खरीदा है, ठीक है। अगर पोसाइडन एयरक्राफ्ट का बात करें तो पोसाइडन एयरक्राफ्ट को हम सबमरीन हंटर भी कहते हैं। एक्चुअली ये क्या होते हैं, ये हवा के ऊपर उड़ते हैं, ये समुद्र के ऊपर उड़ते फिरते एयरक्राफ्ट है जो कि जहां भी सबमरीन दिखते हैं ये पहले अपने डिटेल्स देते हैं उसके बारे में और फिर वो एक टॉर्पिडो को थ्रो करते हैं पानी के अंदर जो कि उस सबमरीन को मार देता है। तो उसको सबमरीन हंटर भी कहा जाता है इसलिए, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें तो हमारे पास इजरायली अवाक सिस्टम है। यदि अवाक सिस्टम का बात करें तो इनके जो रडार का जो रेंज होता है वो इतना ज्यादा होता है कि वो बहुत बड़ा एरिया को
वो बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। अगर उस एरिया में यदि कोई भी इनको कोई भी डाउट चीज दिखता है तो वो तुरंत ही रिपोर्ट करते हैं इंडियन हाई कमांड को। ठीक है, तो ये दो बहुत ही बेनिफिशियल ब्रह्मास्त्र है हमारे पास, जो कि चाइना के पास नहीं है। अगर चाइना ने इनफैक्ट आवाज सिस्टम इसराइल से खरीदने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन सिंस हम जानते हैं कि इंडिया और इसराइल की बहुत ही अच्छी दोस्ती आज के टाइम में, तो इसराइल ने इसे चाइना को देने से टोटली मना कर दिया। ठीक है, इसके अलावा यदि बात करें तो हमने अभी आपको पहले वीडियो में बताया था कि सॉरी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यूएस के साथ में इंडिया का 3 साइन है, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स साइन है, कोमकासा, बेका और लेमोवा। ठीक है, लेमोवा तो था लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसमें क्या था कि लेमोवा में क्या था कि एक दूसरे का पोर्ट्स हम लोग बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बेका में क्या होता है कि बेका में एक दूसरे का जो सैटेलाइट का जो इमेजेस है और जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे का कंट्री रियल टाइम बेसिस में यूज कर सकते हैं। देखो रियल टाइम बेसिस मतलब क्या होता है, रियल टाइम बेसिस मतलब कि एकदम जैसे हो रहा है ना वहां पर हो रहा है, विद इन सेकंड्स आपके पास पहुंच जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि यदि कोई यूएस का सैटेलाइट है तो वो पहले भेजेगा यूएस को कोई इमेज और फिर यूएस अप्रूव करेगा तो वो इंडिया को मिलेगा। वो जो जैसे यूएस को इमेज भेज रहा है, एट द सेम टाइम इंडिया के पास भी वो इमेज पहुंच जाएगा। और इसका बेनिफिट हमने गलवान वैली क्लास में देख रखा है। ठीक है, गलवान वैली क्लास में India was always one step ahead of Chinese because of this BECA agreement with US, because we know that the US network of satellites is the best in the world and it is used. So India has definitely been benefited a lot from the BECA agreement. इसके अलावा यदि देखें तो सिंस हम जानते हैं कि मालदीव्स और श्रीलंका एक बहुत ही छोटे आइलैंड नेशंस हैं और इनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो सबमरीन्स को और अदर हिडन जो स्पाई नेवी के जो थ्रेट्स है या फिर सबमरीन्स है उसे डील कर सके। तो उसके लिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने श्रीलंका और मालदीव्स को के जो एरिया है वहां पर कोस्टल सर्विलेंस रडार सिस्टम इंस्टॉल किया है, ताकि वो इजिली से यदि कोई भी चाइनीज सबमरीन्स इस एरिया में आए तो वो इजिली से उसे पकड़ सके। ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने मालदीव्स को रिसेंटली 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी क्या किया है, गिफ्ट किया। ठीक है, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का काम क्या होता है, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का काम होता है सर्विलेंस। ये दिस इज टोटली फॉर सर्विलेंस पर्पस। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे एक थम्स अप दीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।